My name is Arvind. I have done my bachelor's degree from IIT Kanpur in civil engineering, and I am currently enrolled as an assistant executive engineer in Roads and Buildings Department of Andhra Pradesh. And I have secured an All India rank of 41 in GATE 2021 and All India rank of 91 in GATE 2020. And I have cracked the APPSC examination, which is the state examination for the assistant engineers, which I have currently enrolled in. Okay, please join us on our Telegram channel for the upcoming updates on the next videos and content material for your respective examination. Here it is the link, Unacademy MyGate CE, and here are our Unacademy packages in which we have plus subscription, in which you can get live classes from anywhere in the country, and you have access to the weekly tests, and the courses will be structured from the scratch to in-depth analysis and knowledge, and there will be crash courses for your quick revision before the examination, and there will be rank improvement batch in which you can counter many variety of questions for to improve your rank for the examination, and you can get all these in unlimited access. You can view the live classes as many times as you can if you in case you have missed that. And in the iconic subscription, you will get all the benefits from the plus subscription, along with a personal coach with whom you can have one-on-one interaction, and he will be your study planner. You can get your customized study plan according to your free time, which is available in your timetable. And there will be study booster sessions, which you receive essential guidelines via regular workshops and a personalized test analysis for your weekly test. For your repeated mistakes and the concept you miss, you can avail through this iconic subscription, and there will be preparatory study material for the corresponding exam for your corresponding examination, and there will be dedicated doubt clearing sessions from the educators. And next, here are our subscription packages. In plus subscription, you can avail it at a price of 2,434 rupees per month. If you have taken it for the 12 months. For iconic, you can avail it for 3,769 per month for a span of 12 months. And if you wish to subscribe for 2 years, you can avail it for much less price, which it will cost around 100,770 rupees per month. For iconic, it will cost 2,775 rupees per month. You can use ARVD 10 for 10% offer on your subscription. And there is a session going on the Unacademy Educator app and the platform regarding the preparation strategy, and you can avail it for free. Next, we will go into the preparation strategy for the GATE 2022 examination. Okay, before going through the technicals, we will see why you should give the GATE. आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा लोग देते हैं गेट एग्जाम. इन सिविल इट विल बी अराउंड 1.5 lakh members who will be enrolled for the examination every year, and most of the people don't know the complete opportunities which you can avail through this examination. We will first see those, and we will move on to the subject wise strategies. And first one, domestic opportunities. आपको गेट के रैंक थ्रू बहुत सारे पीएसयू में ज्वाइन कर सकते हैं आप अच्छी पोजीशन में. पैकेज भी वहाँ पे काफ़ी अच्छा मिलेगा. द टॉप मोस्ट पीएसयूज विच यू कैन ज्वाइन आर थ्रू द सिविल आर ONGC, PGCIL, IOCL, HPCL and BHEL, and you can see the approximate packages for the respective PSUs. You can see ONGC almost has the highest package of 20.6 lakhs per annum CTC, and PGCL gives you a package of 20 lakhs per annum, and IOCL 16 lakhs per annum, HPCL 16 lakhs per annum, and BHEL 13 lakhs per annum.
Next, along with these PSUs, there are various government and research organizations, and the first one is BARC, which is known as Baba Atomic Research Center. यहाँ पे आपको एटॉमिक और न्यूक्लियर एनर्जी पे रिसर्च करेंगे with respect to the in perspective of the Indian origins. एंड अगर आप इसमें एनरोल करते हो, इसमें आपको मास्टर्स डिग्री मिल जाएगा अगर बीटेक के बाद इसमें आप ज्वाइन कर लिया. एंड नेक्स्ट यू विल बी वर्किंग ऑन द रिएक्टर डिज़ाइन, फाउंडेशन ऑफ द रिएक्टर एंड कूलिंग टावर्स, वाटर सप्लाई फॉर द कूलिंग ऑफ द रिएक्टर, ट्रीटमेंट ऑफ द न्यूक्लियर वेस्ट वाटर. आपको इसमें बताया जाएगा कि रिएक्टर को कैसे डिज़ाइन करना है एंड टाइप ऑफ द कंक्रीट you use and the structural norm for designing the reactor and same as for the cooling towers. and आप environment पढ़े होंगे वेस्ट वाटर को कैसे ट्रीट करता है. सिमिलरली इसमें भी रिएक्टर को न्यूक्लियर वेस्ट वाटर होते हैं उसको कैसे ट्रीटमेंट करेंगे डिस्पोजल के पहले, एंड द सप्लाई ऑफ द हेवी वाटर फॉर द रिएक्टर टू कूल डाउन द न्यूक्लियर फिजन एंड ऑल. एंड नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आता है DRDO, विच इज़ नोन एज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पे आपको वेरियस मिसाइल्स और मिलिट्री टेक्नोलॉजी के पे आप वर्क करेंगे. इसमें भी टेस्ट लैबोरेटरी में सिविल इंजीनियरिंग का मेन हाथ होता है आपको टेम्पररी स्ट्रक्चर्स बनाने में एंड फॉर द टेस्टिंग पर्पसेस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द वेस्ट वाटर फॉर द wastewater which are used to design the chambers and all. and other examination गेट के सिलेबस के थ्रू आप बाकी एग्जाम्स में भी अपेयर कर सकते हैं. उसमें आपका आता है इसरो, विच इज़ द एवरीबडी नो दैट दिस इज द इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन. this will have the same syllabus as the GATE in objective manner, and there will be Coal India Limited. And for BARC you can go through the GATE exam score, or they will have the separate exam, and you can opt for a option of best of both. अगर आप और पढ़ना चाहते हैं बीटेक के बाद, मास्टर्स के लिए गेट मस्ट होता है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होता है प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स के लिए. उसमें हम देखेंगे एमटेक, मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी, एंड यू विल बी डूइंग द थीसिस अंडर रेनोड प्रोफेसर्स इन द वर्ल्ड. IITs में आप IISc में बहुत अच्छे प्रोफेसर्स के अंदर आप थीसिस कर रहे होंगे, एंड यू कैन अवेल ए मंथली स्टाइफंड of approximately 12,500, and you will get the extra benefits if you have enrolled as a research assistant for any course under a professor. and आपको फिर से कैंपस लाइफ और फ्रीडम मिल जाएगा अच्छे इंस्टीट्यूट्स के अंदर, एंड प्लेसमेंट्स अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी अच्छा होंगे IITs और IISc में. एंड आपको और पोस्ट ग्रेजुएशन करना है PhD जैसा, आप अब्रॉड के लिए भी जा सकते हो क्योंकि आपके प्रोफेसर जो होते हैं वो काफ़ी रेनाउंड होते हैं. सो यू कैन गेट दी बेटर लिंक्स थ्रू देम, एंड यू कैन डू योर semester in abroad through a student exchange program. and there will be you might be participating in the international seminars for the respective topic you are researching for your thesis. एंड नेक्स्ट आप अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हो तो पहले में आपको मिलता है नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर. ये आपको गेट स्कोर के थ्रू अप्लाई करने के लिए चांस देते हैं. वर्ल्ड में 11th रैंक यूनिवर्सिटी है, मतलब काफ़ी अच्छा है. एंड नेक्स्ट सिमिलरली यू कैन गेट इनटू न्यानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी विच इज़ आल्सो a Singapore based university. It is ranked just next to the National University of Singapore. These are one of the most renowned universities in the world and the best in the Asian continent. And next आपको आता है टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी म्यूनिक. ये जर्मनी में बेस्ट यूनिवर्सिटी है. दिस इज ऑल्सो allows you to apply for the master's program through your GATE score. एंड नेक्स्ट अब एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं. सो इन द एग्जाम हमको टोटल 65 क्वेश्चंस देते हैं विच विल कैरी अ टोटल ऑफ 100 मार्क्स. दिस विल बी हैविंग टू पार्ट्स. वन इज नॉन टेक्निकल पार्ट एंड नेक्स्ट इज ए टेक्निकल पार्ट. इन नॉन टेक्निकल पार्ट आपको 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे विच विल कवर 15 मार्क्स, एंड इन द टेक्निकल पार्ट
आपको 55 क्वेश्चन मिल जाएंगे विच विल बी कवरिंग 85 मार्क्स एंड टोटल बोथ कंबाइंडली विल कवर 100 मार्क्स। आपको नॉन टेक्निकल में मिलेंगे एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड वर्बल। टेक्निकल में आपको सारे सिविल के सब्जेक्ट्स आ जाएंगे एंड नेक्स्ट उसके अलोंग मैथमेटिक्स पे एडिशनल होगा। नेक्स्ट हम सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं तो इसमें देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज वेटेज। इसमें हायरार्किकली अरेंज किया गया है ताकि आपको क्लियरली प्रेफरेंस देख सकते हो किस सब्जेक्ट से शुरू करना है और विच विल बी बेटर टू कंप्लीट फर्स्ट। देखिए आप देख सकते हैं तो पहले में आता है जनरल एप्टीट्यूड विच विल अकाउंट फॉर 15 मार्क्स। इसके लिए आप स्पेशली डेडिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप रोज़ एक दो क्वेश्चन एप्टीट्यूड का सवाल लगा देना। आप प्रिपरेशन शुरू करने से पहले शुरुआत में एक दो क्वेश्चन एप्टीट्यूड का लगा लो। जितना टाइम बचे उतना तक ये काफ़ी है आपके लिए। गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे वो खोल के रोज़ आप एक दो क्वेश्चन कर सकते हैं जनरल एप्टीट्यूड। उससे आपकी प्रिपरेशन हो जाएगा एप्टीट्यूड के लिए एंड आपको वो 15 नंबर के आएंगे। दिस इज़ द हाईएस्ट वेटेज इन सब्जेक्ट वाइज। एंड आपको एप्टीट्यूड खाली गेट में भी नहीं है, ईएससी के प्री में भी पूछा जाएगा। उसमें अप्रॉक्सीमेटली आपको हर साल 8 या 9 क्वेश्चंस पूछेंगे विच विल अकाउंट फॉर 18 मार्क्स इन टोटल। तो दिस विल बी बेनिफिटेड फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एज वेल। एंड हमने पहले देखा है कि गेट के सिलेबस में और भी एग्जाम होंगे जैसा कोल इंडिया एंड इसरो, उसमें भी आपको एप्टीट्यूड की सवाल पूछे जाएंगे और वर्बल की भी। ये आपको उधर भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो इसको आप डेली एक दो क्वेश्चंस लगाते जाइए। जब भी आप प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो पहले एप्टीट्यूड की एक दो सवाल लगा दीजिए, वो काफ़ी है। इसके लिए आप सेपरेटली टाइम स्पेंड मत करने की ज़रूरत नहीं है। एंड नेक्स्ट सिविल में आपको आता है एक और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है सॉइल मैकेनिक्स। इसमें भी आपको 12 to 15 मार्क्स मिलेंगे एग्ज़ाम में। इसमें से ये तो हर साल हमेशा कांस्टेंट होता है लगभग 12 to 15 मार्क्स देने में। एंड सिलेबस भी इसका ज़्यादा ही होता है। आप इसको पहले कवर कर लीजिए, एंड में अवॉइड कीजिए पढ़ने के लिए। अगर आपको अब दिसंबर आ गया है, अगर आप इसको शुरू करने की सोच रहे हैं तो मेरी एडवाइस है कि मत कीजिए क्योंकि इसकी सिलेबस जो है वो थोड़ा वास्ट होता है, तो बेटर टू अवॉइड इट। इससे अच्छा आप बाकी सब्जेक्ट्स कर सकते हैं। अगर इसमें आपको मार्क्स पर द अमाउंट ऑफ सिलेबस यू हैव टू स्टडी इसमें थोड़ा कम आता है नंबर। तो अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन आपको आप करना चाह रहे हैं तो इसको पार्ट्स में बांट दीजिए। आप शुरू करें कि पहले सॉइल प्रॉपर्टीज़ कीजिए और कंसोलिडेशन कीजिए एंड नेक्स्ट फाउंडेशन, शैलो डेप्थ वाला फाउंडेशन पढ़ लीजिए। उसी से आपको 5-6 नंबर उसी से मिल जाएंगे। तो that will account for around 25 to 30% of the syllabus. So you can gain as much marks as you can in a minimum of time. And next आपको आता है मैथमेटिक्स। ये टेक्निकल पार्ट में दिखेगा लेकिन इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है। गेट के लिए आपकी मैथमेटिक्स में सब्जेक्ट्स होते हैं अलजेब्रा, इसमें मैट्रिसेस वगैरह पूछा जाएंगे। एंड नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी एंड कैलकुलस, इसमें आपको इंटीग्रल्स, लिमिट्स और गॉस लॉ, डाइवर्जेंस वो सब पूछा जाएंगे। एंड नेक्स्ट आपको आता है डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड न्यूमेरिकल मेथड्स। अगर इसमें देख रहे हैं तो इसमें डिफरेंशियल इक्वेशंस को थोड़ा ज़्यादा वेटेज होता है एंड सिलेबस इज़ आल्सो समवॉट बिग कंपेयर टू द अदर सब्जेक्ट्स। कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशंस का सिलेबस थोड़ा ज़्यादा होता है एंड मैट्रिसेस आपको आसानी से समझ आ जाएगा। एंड दैट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट, एवरी ईयर यू विल बी सीइंग 1 or 2 क्वेश्चन फ्रॉम द मैट्रिसेस। तो अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं तो ट्राई टू गो फ्रॉम द मैट्रिक्स पार्ट, अलजेब्रा पार्ट। एंड आपको न्यूमेरिकल मेथड्स भी आसान है, बहुत लोग छोड़ देते हैं उसको, लेकिन उसमें आपको 6-7 ही फार्मूला याद रखना होता है। एक इक्वेशंस के लिए आता है न्यूटन रैप्सन मेथड, सीकेंट फार्मूला, लीनियर मेथड एंड एक और होता है। एंड नेक्स्ट इंटीग्रल के लिए आपको सिम्पसन्स का 2 ही रूल होता है, एक
1/3 और 3/8, दैट्स इट। एंड डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सॉल्व करने के लिए आपको दो ही मेथड याद रखने हैं बस, एक फॉरवर्ड मेथड है और एक बैकवर्ड मेथड में। टोटल आप सब मिला के कितना 7-8 ही फार्मूला होंगे, वो आप पढ़ लीजिए, आसान सा क्वेश्चन बन जाएगा। वो छोड़ देते हैं लोग, लेकिन उसका सिलेबस कम होता है बाकी चैप्टर से कंपेरेटिवली। एंड मैथमेटिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट है, अराउंड 10 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फॉर द ईएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एज वेल। तो आप गेट का प्रीवियस ईयर लगा लिया तो उसका भी आपका प्रिपरेशन हो जाएगा, सो इसको स्किप मत कीजिए। जनरली लोग टेक्निकल को ज़्यादा भाव देते हैं और मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड इग्नोर कर देते हैं। आप ये ध्यान रख लीजिए, मैथमेटिक्स इज एज इक्वली इम्पॉर्टेंट एज योर टॉप टेक्निकल सब्जेक्ट्स टू स्कोर ए गुड रैंक इन द गेट एग्जामिनेशन। एंड नेक्स्ट आता है आपको एनवायरनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, नेक्स्ट फ्लूइड मैकेनिक्स, सर्वेइंग, आरसीसी, सॉम, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, स्टील स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड मटेरियल। आप नए नए आप हायरार्किकली रीजन करना चाह रहे तो आप मैं एडवाइस करता हूँ कि आपको स्ट्रक्चर के पार्ट जो है ना वो आप एंड में रिवाइज कीजिए, क्योंकि उसका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा होता है आरसीसी का, एंड यू वोंट बी गेटिंग द नंबर, you won't be seeing the amount of the questions asked from the syllabus, the huge syllabus which you have covered. So मैं प्रिफर करता हूँ आप इसको एंड में रख लीजिए। अगर आप प्रिपेयर करना चाह रहे थे आरसीसी का, उसमें आप पढ़ लीजिए बस। शुरुआत में एक होता है, शुरुआत में कंक्रीट की प्रॉपर्टीज और टाइप ऑफ मेथड्स, एंड उसमें ग्राफ वगैरह पूछा जाता है, एंड उसमें क्रीप का जो फार्मूला होता है उसी से प्रॉपर्टीज के बारे में पूछेंगे एक दो क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट ट्राई टू प्रिपेयर बीम्स, स्लैब्स, शियर, ये तीनों ये चारों चैप्टर काफ़ी है आपका आरसीसी में। इसी से आपका मैक्सिमम सवाल पूछा जाएंगे। एंड अगर आप स्टील भी करना चाह रहे हैं तो स्टील का भी आप खाली कंप्रेशन तक के पढ़ लीजिए, वहाँ से ही आपको मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाएंगे। रेयरली आपको पीछे वाला पार्ट जो है, जैसा कि बीम्स, गैंटरी गडर्स, रूफ ट्रस, इसी से रेयरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको स्टील में शुरुआत वाला पार्ट जो होता है, एक है कनेक्शंस नॉर्मल वाला, बोल्ट और वेल्डिंग, एंड नेक्स्ट एसेंट्रिक कनेक्शंस होता है, एंड द अदर पार्ट विल बी योर टेंशन मेंबर्स एंड कॉलम्स। सो ये पांचों आप ध्यान से पढ़ लीजिए, इसी से आपका मैक्सिमम क्वेश्चंस बन जाएंगे स्टील का। एंड आरसीसी का भी हमने देखा है, इसी प्रॉपर्टीज ऑफ द कंक्रीट एंड टाइप्स ऑफ द एलएसएम एंड एलएसएम और डब्ल्यूएसएम का जो प्रॉपर्टीज है वो। एंड नेक्स्ट बीम्स, बीम्स में सारे इंक्लूडेड होता है, सिंपली सपोर्टेड, सिंपली सिंगली रेनफोर्स्ड और डबली रेनफोर्स्ड, टी बीम, सब कुछ है। एंड नेक्स्ट शेयर भी आप देख लीजिए, बॉन्ड एंड शेयर। एंड नेक्स्ट उसके बाद आप कॉलम्स भी देख लीजिए, एक काफ़ी है, इसी से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाएंगे इसमें भी और ईएससी के प्री में भी। ये एडवाइस मैं उन लोगों को दे रहा हूँ जो लोग पहली बार तैयारी कर रहे हैं। आप इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, आपको खाली आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है, उसको रिवाइज भी करना है। तो मैं इस ऑर्डर बता रहा हूँ, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो इसी ऑर्डर में पढ़ लीजिए। उसके बाद ही जो बचा हुआ टॉपिक्स है आरसीसी में आपको मिलेगा, फाउंडेशन, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, टॉर्शन, जो भी है वो सब आप एंड में रख लीजिए। पहले जो हमने अभी मैंने बताया था वो ख़त्म कीजिए, पहली बार पढ़ना और रिवीजन भी, उसके बाद आप बाकी भी देख लीजिए अगर टाइम हो तो। फ्लूइड में आप मोस्टली, फ्लूइड का भी बहुत ज़्यादा होता है सिलेबस, आप ट्राई कीजिए इसमें पढ़ने की, ओसीएफ पढ़ने के लिए ट्राई कीजिए। इसमें हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाएंगे ओपन चैनल फ्लो के थ्रू, एंड दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर ईएससी प्रीलिम्स एंड ईएससी मेंस एग्जामिनेशन। एंड आप जो भी आप स्टेट सर्विसेज में भी अप्लाई भरना चाह रहे थे तो फ्लूइड से बहुत ज़्यादा नंबर आएंगे। सो ओसीएफ इज की टॉपिक इन फ्लूइड मैकेनिक्स। आप ट्राई कीजिए, उसका सिलेबस ज़्यादा है लेकिन
और खाली गेट में भी नहीं है, बाकी एग्जाम्स में भी उसकी इम्पोर्टेंस है. सो ट्राई टू कंप्लीट OCF इन द फ्लूइड मैकेनिक्स. एंड आप नॉर्मल वाला पार्ट में चले गए तो बाकी फ्लूइड मैकेनिक्स के पार्ट में उसमें आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होता है. एक फ्लूइड प्रॉपर्टीज एंड प्रेशर के बारे में, एंड प्रेशर मेजरमेंट्स एंड फ्लो मेजरमेंट्स. उसके बाद आपको आता है एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन. एंड नेक्स्ट आपको पाइप फ्लो के बारे में पढ़ लीजिए एंड लैमिनार फ्लो. ये इंपॉर्टेंट होता है, इससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाएंगे एग्जाम्स में. अगर आपके पास टाइम है तो तब आप टर्बुलेंट फ्लो, बाउंड्री लेयर एंड वो सब पढ़ सकते हैं. पहले आप एक ऑर्डर वाइज पढ़ लीजिए. आप प्रीवियस ईयर खोलिए, उसमें आप चैप्टर वाइज क्वेश्चंस देख लेना पहले. आपको कुछ चैप्टर्स ऐसा होता है कि हर साल उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो मार्क कर लीजिए, पहले वो कंप्लीट कर लेना. आपको ये ज़रूरत नहीं कि सिक्वेंशियली करना है सब कुछ. ऐसा मत सोचिए, आपको कम टाइम में आपकी आउटपुट मैक्सिमाइज करना है. तो आप जो जिस चैप्टर्स में क्वेश्चंस रेगुलरली पूछा जाता है, पहले उसको आप ख़त्म कीजिए एंड उसको एक बार और रिवाइज कीजिए. आपको पहली बार ख़त्म करने के बाद थोड़ा आपको समझ आ जाता है 50-60%. एंड आप कुछ दिन के बाद भूल जाएंगे, उसको रिटेन नहीं होता उतना. तो आपको एक और बार उसको रिवाइज करना है. रिवीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. अगर मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ तो 2 बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा आपकी फार्मूला और कॉन्सेप्ट सब याद रखने के लिए. तो ट्राई कीजिए आप 2-3 बार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करने के लिए. तो ओके. एंड नेक्स्ट हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में देखेंगे. मेरा जो भी सीरीज चल रहा है प्लेटफॉर्म में, वो ट्रांसपोर्टेशन में चल रहा है अभी. तो वो ख़त्म होने के बाद हम एक और सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे. एंड पहले आपके ट्रांसपोर्टेशन में आता है 4 टॉपिक्स. वो है ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, नेक्स्ट ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड पेमेंट. पेमेंट 2 टाइप के होते हैं, फ्लेक्सिबल और रिजिड पेमेंट्स. एंड नेक्स्ट आपको आता है हाईवे मटेरियल्स. ये चारों से पूछा जाएंगे. एंड इसका एक्स्ट्रा भी 2 ऐड कर लिया है, रेलवेज और एयरपोर्ट भी. आपको रिसेंटली रेलवे से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, गेट में भी पूछा जा रहा है. गेट में जनरली कॉर्नर टॉपिक से नहीं पूछता, अब पूछने लगा है. एंड ESC में भी आपको रेलवे से थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे. तो अगर आप दोनों के लिए टारगेट कर रहे हैं तो रेलवेज ख़त्म करने के लिए कोशिश कीजिए. एंड इसमें शुरुआत, पहला टॉपिक जो होता है वो है ज्योमेट्रिक डिज़ाइन. ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में हम देख सकते हैं, इसमें पहला आता है हाईवे क्रॉस सेक्शन. जो है ये रोड क्रॉस सेक्शन. एंड इसमें आप इसके क्रॉस सेक्शन देख सकते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन. रोड अलोंग द इनटू द प्लेन है रोड इसमें. एंड नेक्स्ट अब ज्योमेट्रिक डिज़ाइन मतलब होता है कि अलाइनमेंट ऑफ द रोड क्रॉस सेक्शन एंड द स्लोप प्रोवाइडेड, कर्व्स टू बी गिवन, ये सब होता है. अगर इसमें आप शुरुआत वाले पार्ट देखेंगे तो आता है क्रॉस स्लोप और लॉन्जिट्यूडिनल स्लोप. आपके क्रॉस स्लोप जो होता है वो जनरली इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन होता है. अगर आप इसमें देख सकते हैं तो इस डायरेक्शन में जो स्लोप है उसको क्रॉस स्लोप कहते हैं. वो प्रोवाइड करता है कि मेनली ड्राइनेज के लिए है. तो that will be provided for the drainage purposes, that will be in the transverse direction. तो इस साइड भी एक हाफ में डाउनवर्ड होगा और एक हाफ में इधर डाउनवर्ड होगा. तो आपकी जो हट के ऊपर जो होता है रूफ का, ऐसा ही शेप होगा लेकिन ग्रेडियंट कम होता है. वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ सरफेस और रेनफॉल में. एंड लॉन्जिट्यूडनल स्लोप जो होता है वो अलोंग द रोड होता है. दिस नेक्स्ट आपको आता है ग्रेड कंपेंसेशन. दिस विल बी प्रोवाइडेड एट द कर्व्स. क्योंकि आपके
जहाँ पे कर्व्स है, अगर आप उधर ज़्यादा ग्रेडियंट प्रोवाइड कर दिया तो व्हीकल का जो इंजन पावर है वो एक्स्ट्रा यूज़ करना पड़ता है, सो आपके फ्यूल कंजम्पशन वो सब ज़्यादा हो जाता है। तो वहाँ पे हम ग्रेड कंपनसेशन प्रोवाइड करते हैं, मतलब थोड़ा ग्रेडियंट हटा देते हैं जहाँ पे हिली एरियाज में कर्व मिल जाती है वहाँ पे। तो दैट वैल्यू इज गिवन बाय 75/r और 30+r/r। यहाँ पे r जो है उसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। उस टर्निंग का कर्व जो है उसका रेडियस जो है उसी को इधर लिया जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड आप इसमें यूनिट्स ध्यान रखना, आर का यूनिट्स जो होता है वो मीटर में लेते हैं। एंड ग्रेड कंपेंसेशन जो लेते हैं हम मिनिमम वैल्यू लेना है इन दोनों का, 75/r और 30+r/r में मिनिमम लेना है कंपनसेशन है। अब कंपनसेटेड ग्रेडियंट जो होता है एक्चुअल जो प्रोवाइड कर रहे हैं हम उससे ये घटाना पड़ेगा। एंड एक और बात ध्यान रखना है, जो कंपनसेटेड ग्रेडियंट है वो 4% तक लिमिट करते हैं। अगर आप इस वैल्यू निकलने के बाद आपको 3.5% निकल गया तो आंसर 3.5 नहीं होता है, आपको 4% दिखाना पड़ेगा, क्योंकि कोड में दिया हुआ है कि इसको 4% तक कर सकते हैं, उससे कम नहीं कर सकते। तो ऐसा सवाल पूछा जाएगा आपसे, अभी तक तो नहीं आया है, पूछ सकते हैं तो इसके बारे में पूछेगा। ग्रेड कंपनसेटेड ग्रेडियंट निकालने के लिए वो सब दे देगा, रेडियस, उस टायर का रेडियस, सब कुछ। मोस्ट प्रोबेबली आपको फिल्टर करना है। उसको पता है कि लोग यहाँ पे गलती करेंगे, अगर वैल्यू 4 लोग फार्मूला लगा के कर लेंगे लेकिन वैल्यू कम आ गया तो बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो आप ये ध्यान रखना, कंपनसेटेड ग्रेडियंट की लिमिट जो होती है 4% तक लिमिट करना है, उससे कम नहीं देना है। एंड नेक्स्ट हमारा आता है साइड डिस्टेंसेस आता है। ये 4 तरीके के होते हैं: स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस एंड हेडलाइट साइड डिस्टेंस। पहले हम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बारे में जान लेते हैं। देखिए, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो होता है ये मिनिमम विजिबिलिटी प्रोवाइड करना है आपको। अगर आप रोड पे जा रहे हैं, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, मतलब कोई एनिमल कुछ आ गया रोड पे, आपको मिनिमम विजिबिलिटी कितना चाहिए रोड के अलाइनमेंट, सो आप उसको एक्सीडेंट होने से पहले आप ब्रेक लगा सकते हैं। तो जनरली रोड डिज़ाइन करने के टाइम आपको ये माइंड में रखा जाता है, जितना भी पॉसिबिलिटी हो हर एक जगह पे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, जितना स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के जो वैल्यू होते हैं उतना विजिबिलिटी रोड पे हर जगह प्रोवाइड करना है। टाइप ऑफ ये वैल्यू टाइप ऑफ रोड पे भी वेरी करते हैं। अगर आपकी रोड सिंगल लेन टू वे है तो दोनों गाड़ी आ रहा है, थोड़ा ज़्यादा विजिबिलिटी प्रोवाइड करना है, क्योंकि दोनों गाड़ी ऑपोजिट में आएंगे तो आप दोनों को ही रुकना चाहिए। अगर आप वन लेन सिंगल अगर आप वन वे डायरेक्शन ट्रैफिक है तो आपको खाली जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो स्टेशनरी होती है या सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, सो आपको विजिबिलिटी कम प्रोवाइड करने से चल जाता है। लेकिन आप सिंगल लेन टू वे ले रहे हो तो थोड़ा ज़्यादा विजिबिलिटी प्रोवाइड करना है, क्योंकि आपकी गाड़ी जो ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो आपकी तरफ आती रहती है, गाड़ी में भी आप भी गाड़ी में उसी के डायरेक्शन में जाते रहते हो। तो इट विल वैरी लाइक दैट। अगर आप इसमें देख सकते हैं तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस विल बी minimum distance required to bring down the vehicle traveling at a design speed by applying brakes to rest without any collision safely। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट जो होता है लैग डिस्टेंस। अगर आप रोड पे किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन या एनिमल कुछ देख रहा है तो आपको प्रोसेस करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। आपके जो सेंसस होता है, आपने ऑब्स्ट्रक्शन नोटिस किया आपके ब्रेन ने, एंड दैट विल सेंड सिग्नल्स टू योर बॉडी, लेग बॉडी पार्ट्स, एंड यू विल प्रेस द ब्रेक। तो ये जो टाइम होता है प्रोसेस होने का, ये जनरली हर एक ड्राइवर में वैरी करता रहता है। अगर आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग लेते हैं तो इसका वैल्यू होता है 1.5 to 2 सेकेंड्स। तो आपने कुछ नोटिस कर दिया ऑब्स्ट्रक्शन तो आपको 1.5 to 2 सेकेंड्स के बाद ब्रेक प्रेस करेंगे। उस टाइम तक गाड़ी जो वेलोसिटी में ट्रैवल कर रही है उस वेलोसिटी में ट्रैवल करते ही रहेगी। सो इसको लैग डिस्टेंस कहते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल ड्यूरिंग ड्राइवर्स रिएक्शन टाइम।
IRC ने रिकमेंड किया कि इसकी वैल्यू 2.5 सेकेंड्स, क्योंकि ज़्यादा सेफ्टी है। जनरली ड्राइवर्स का 1.5 to 2 सेकेंड्स नॉर्मल के लिए, अगर हमने 2.5 सेकेंड लिया तो कुछ ज़्यादा विजिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे लैग डिस्टेंस वाली बात में, तो सेफ्टी के लिए ज़्यादा अच्छा ही है। एंड नेक्स्ट पार्ट आपका आता है ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो व्हीकल अब स्पीड में ट्रैवल कर रही है, ब्रेक प्रेस करने का तुरंत तो नहीं रुकेगी, उसके बाद आपकी वेलोसिटी व्हीकल मान लें कि कुछ 80 किलोमीटर पर आवर पे ट्रैवल कर रही है। अगर आपने ब्रेक प्रेस किया तो विद इन इंस्टेंटली तो नहीं रुकेगी, 80 to 0 लाने में कुछ टाइम लगेगा। तो आपने काइनेमेटिक्स में देखा है कि फॉर्मूला जो होती है v² - u² = 2as। यहाँ पे आपकी ये जो एक्सेलरेशन होती है डिसेलरेशन होती है, क्योंकि हम वेलोसिटी, गाड़ी की वेलोसिटी जो है वो हम कम करे जा रहे हैं। तो वहाँ से आप डिराइव कर सकते हैं इसको। फाइनल वेलोसिटी आपको 0 तक लाना है, इनिशियल वेलोसिटी v है, तो आपकी डिस्टेंस जो हो जाएगी v² / 2a। यहाँ पे जो डिसेलरेशन है वो उसकी वैल्यू होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, हमने देखा है अब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बारे में। होता क्या है, आपको कोलिजन अवॉइड करने के लिए मिनिमम डिस्टेंस की विजिबिलिटी आपको रोड में प्रोवाइड करना चाहिए, उसको कहते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। एंड इट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वन इज लैग डिस्टेंस, वन एंड द अदर पार्ट इज ब्रेकिंग डिस्टेंस। लैग डिस्टेंस आपकी होता है कि इट इज द टाइम टेकन बाय द ड्राइवर टू एनालाइज द सिचुएशन टू प्रेस द ब्रेक। तो लैग डिस्टेंस के टाइम में आपके क्या होता है, गाड़ी सेम स्पीड पे ट्रैवल करेगी, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा उसकी मोशन में। एंड नेक्स्ट ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है, ब्रेक प्रेस करने के बाद आपकी गाड़ी जितने डिस्टेंस में जाके रुकेगी, दैट विल बी क्लासिफाइड एज द ब्रेकिंग डिस्टेंस। आप ये भी ध्यान रखना, कभी आप कुछ कंडीशंस में ये भी होता है आपकी वेलोसिटी 0 तक लाने की ज़रूरत नहीं होती है। कभी कभी पूछता है कुछ एंट्रेंस, कुछ आप अलग लेन में ले रहे हैं तो वहाँ पे लिमिट का आप मान लो कि हाईवे की स्पीड जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर व्हीकल ट्रैवल कर रही है, एंड उसको कुछ डिफरेंट लेन में शिफ्ट करना है। तो शिफ्ट करने के लिए आपको खाली 30 किलोमीटर पर आवर पे लाना है। तो उस केस में आपकी ब्रेकिंग डिस्टेंस होती है v² - u² / 2gf। v आपकी वैल्यू जो होती है वो 80 है, एंड u वैल्यू जो होती है 30 है। ये पूछ सकता है थोड़ा रूटीन क्वेश्चन, सब लोग u0 लेके कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा इन ट्विस्ट करने के लिए आपको फाइनल वेलोसिटी भी दे देता है, 0 नहीं लाना है, कुछ छोड़ देना है फाइनल वेलोसिटी। सो आप ध्यान रखना वो चीज़ भी। एंड नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। पहला पार्ट जो है स्पीड ऑफ द व्हीकल। इसके बारे में आप सेंस कर सकते हैं, अगर मान लो आपकी गाड़ी की स्पीड ज़्यादा है तो ब्रेक प्रेस करने स्पीड ज़्यादा है। इसमें दो पार्ट है, लैग डिस्टेंस और ब्रेक डिस्टेंस। लैग डिस्टेंस जो होते हैं गाड़ी की स्पीड इंटू 2.5 सेकेंड्स रिएक्शन टाइम। आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं, अगर आप गाड़ी की स्पीड जितना ज़्यादा है लैग डिस्टेंस उतना होगी। अगर आपकी गाड़ी की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, इसको 80 इंटू 2.5 करेंगे। आप ध्यान रख लीजिए 80 को मीटर्स पर सेकेंड लाना है, उसके बाद इंटू 2.5 करेंगे। एंड अगर आपकी 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर पर आवर है, उसका मतलब है 27.78 मीटर पर सेकेंड इंटू 2.5 करेंगे। तो इसमें हम देख सकते हैं कि स्पीड जितना बढ़ेगी उतना लैग डिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। एंड अब नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस पे। एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस दिया गया है v² / 2gf। यहाँ पे स्क्वेयर टू द पावर प्रोपोर्शनल है, सो इसमें और ज़्यादा बढ़ेगी। अगर स्पीड आपकी इंक्रीज हो रहा है तो आपकी ब्रेक डिस्टेंस टू द पावर ऑफ स्क्वेयर, वेलोसिटी टू द पावर ऑफ स्क्वेयर इंक्रीज होगा। तो इन दिस केस, if speed of the vehicle increases, both lag distance and braking distance will increase, so total distance will also increases. And next आपकी brake efficiency है। The efficiency of the brake depends upon the age of the vehicle and characteristics etc. But practically आप 100% efficiency लाना impossible है। तो हम क्या करते हम फ्रिक्शन फैक्टर जो लेते हैं वो जनरली उसको टोटल इंक्लूड करके लेते हैं। मतलब एफ जो है वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू ब्रेक एफिशिएंसी मिला के।
कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है कि सेपरेटली दे देता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और ब्रेक एफिशिएंसी, वो आप ध्यान रख लेना। तब आपको दोनों को मल्टीप्लाई करके लेना पड़ेगा। डिसेलरेशन जो होगी उस टाइम पे वो वैल्यू होती है जी इंटू एफ इंटू एफिशिएंसी ईटा। तो हाँ, हम लैग डिस्टेंस की बात करें तो लैग डिस्टेंस की फॉर्मूला खाली होता है v इंटू टी। इसमें तो एफिशिएंसी का ही दिख नहीं रही है, सो दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ द ब्रेक्स। एंड नेक्स्ट पार्ट आता है ब्रेक डिस्टेंस। ब्रेक डिस्टेंस का मैं अपना फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वेयर बाय 2gf इंटू एफिशियंसी। आपकी एफिशिएंसी जो टर्म है वो डिनोमिनेटर में है। अगर आपकी एफिशिएंसी अच्छी है तो ब्रेकिंग डिस्टेंस विल बी लेस। अगर आपकी व्हीकल की एफिशिएंसी पूर है तो द ब्रेकिंग डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल इज मोर। ये आपको आपकी गाड़ी जब एज होती जाएगी आपकी ब्रेक एफिशिएंसी भी डिक्रीज होता जाएगा। सो आपकी एज ऑफ द व्हीकल पे भी एफिशिएंसी डिपेंड करेगी। एंड बेस्ड ऑन द एफिशिएंसी ब्रेकिंग डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट। अगर इसने आपको डिटेलली क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो ऐसा पूछ सकते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ एफिशिएंसी ऑन लैग डिस्टेंस। आपको क्वेश्चन में दे देगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इंडिपेंडेंट, ऐसा कुछ। लैग डिस्टेंस जो है वो ब्रेक एफिशिएंसी पे इंडिपेंडेंट है। एंड आपकी जो ब्रेकिंग डिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी एफिशिएंसी ऑफ द व्हीकल ब्रेक्स। आप ये ध्यान रख लेना। एंड नेक्स्ट जो आता है आपकी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। फ्रिक्शन जो है वो टाइप ऑफ द सरफेस पे डिपेंड करता है। अगर आपकी सरफेस रफ है तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। अगर आपकी सरफेस स्मूथ है तो आपकी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कम होगी। यहाँ पे जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है, दिस इज द लॉन्जिट्यूडिनल फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस नॉट द ट्रांसवर्स। या आप ध्यान रख लीजिए, एक गेट में ऐसा नहीं पूछता है, आईएएस में कभी कभी पूछ सकता है। आपको पता होना चाहिए टाइप कौन सी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है। दिस इज द लॉन्जिट्यूडिनल फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। एंड इसमें भी आपको क्लियरली देख सकते हैं लैग डिस्टेंस जो है v इंटू टी, इसमें तो आपको फ्रिक्शनल टर्म कहीं नहीं आ रहा है। तो और लैग डिस्टेंस विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। एंड ब्रेक डिस्टेंस जो है दैट इज गिवन बाय v स्क्वायर बाय 2gf इंटू एन। इसमें फ्रिक्शन की रेजिस्टेंस जो है वो न्यूमरेटर पार्ट में है। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। अगर आपकी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो ब्रेकिंग डिस्टेंस कम निकलेगी। एंड आपकी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कम है तो ब्रेकिंग डिस्टेंस ज़्यादा निकलेगी। यहाँ पे आपको वैल्यू दिया जाता है 0.35 इंटू 0.4। दिस इज गिवन टेकन इनटू द कंसिडरेशन ऑफ ब्रेक एफिशिएंसी एज वेल। जनरली आपकी होती है 0.7 कुछ होती है फ्रिक्शनल वैल्यू। ब्रेक एफिशिएंसी आपके व्हीकल की होती है 50%। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जनरली इसका वैल्यू 0.35 टू 0.4 दिया जाता है। आप कुछ क्वेश्चंस में देख सकते हैं सेपरेटली देंगे, उसमें आपको दिख जाएगा एफिशिएंसी ऑफ द व्हीकल 50% है एंड फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द सरफेस इज 0.7 या 0.8 कुछ। उसमें आप नोटिस कर सकते हैं दोनों अलग अलग होते हैं। एंड इन दिस केस आपको लैग एफिशिएंसी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है एंड ब्रेक लैग डिस्टेंस में तो कुछ डिफरेंस नहीं है। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस लैग डिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस एंड ब्रेक डिस्टेंस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आपकी टोटल जो ऐसे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में उसमें रिजल्ट क्या आएगी, लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस दैट विल बी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। इसका मतलब ये होता है कि आपकी टाइप ऑफ सर्विस जो होता है जनरली रोड्स आप जनरली क्या देखते हो, कंक्रीट रोड्स देखते हैं, सीमेंट वाले। एंड नेक्स्ट बिटुमिनस रोड्स है एंड नेक्स्ट ग्रेवल वाले रोड्स है। इसमें आप देख सकते हैं तो कंक्रीट का जो रोड्स होता है उसमें फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है बिटुमिनस में कंपेरेटिवली। एंड जो ग्रेवल की रोड होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा होते हैं फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। अगर आप इस ऑर्डर में ध्यान रख ले तो बिटुमिनस सरफेस में कम होती है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, नेक्स्ट कंक्रीट में, उसके बाद नेक्स्ट हाईएस्ट आता है कंक्रीट रोड्स एंड उसके बाद नेक्स्ट हाईएस्ट आता है ग्रेवल रोड्स। तो इसमें आप देख सकते हैं अगर आपके टाइप ऑफ सरफेस रफ होते जा रहे हैं आपकी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो रिक्वायर्ड है वो कम होती जाएगी।
So the more rough your surface is, the less side distance you will require to provide to prevent the accidents. Okay. And next part आता है gradient of the road. ग्रेडियंट मतलब होता है अलोंग लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन दिया जाता है, ग्रेडियंट ट्रांसवर्स डायरेक्शन नहीं है। अगर आपकी ग्रेडियंट अपवर्ड है, तो आप फील कीजिए आप साइकिलिंग कर रहे हैं अपवर्ड ग्रेडियंट पे, तो आपको ज़्यादा पावर लगानी पड़ती है। अगर आपको साइकिल को ब्रेक में लाना है तो कम डिस्टेंस में आपके ब्रेक में आ जाएगी। तो अगर आप इसमें देख सकते हैं तो लैग डिस्टेंस में तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो खाली v इंटू टी है। एंड आपकी जो ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है उसमें फ्रिक्शन के टर्म में ग्रेडियंट की वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट हुआ जाता है बेस्ड ऑन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ग्रेडियंट। अगर आपकी ग्रेडियंट वैल्यू है वो असेंडिंग है, तो इन न्यूमरेटर you will be getting 2g into in numerator our deceleration will be g into f f plus gradient, अपवर्ड ग्रेडियंट। क्योंकि अपवर्ड ग्रेडियंट में क्या होती है, एक फ्रिक्शन तो हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन एक्ट करती है। एंड आपकी व्हीकल की जो वेट की कंपोनेंट है, अगर आप इंक्लाइन सरफेस में ट्रैवल कर रहे हो तो एक व्हीकल की कंपोनेंट, एक वेट की कंपोनेंट जो कि मान लें एम जी साइन थीटा, वो भी आपको डाउनवर्ड खींचेगी। सो फ्रिक्शन प्लस द ग्रेडियंट वैल्यू दोनों रेसिस्ट करेंगे आपकी व्हीकल को जीरो स्पीड में लाने में। तो इन अपवर्ड ग्रेडियंट द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस विल बी reduced. इन केस ऑफ डाउनवर्ड ग्रेडियंट, आप फ्रिक्शन तो हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करती है, लेकिन आपकी जो वेट कंपोनेंट है वो अलोंग द मोशन आ जाती है। तो इन दिस केस आवर एक्सेलरेशन विल बी गिवन बाय deceleration will be given by g into f minus gradient. So okay, in case of downward gradient, our braking distance will be increased and the lag distance will not change, so the total stopping side distance will be increased. तो अगर आपकी जो रोड है वो डाउनवर्ड ग्रेडियंट के अलॉन्ग है, तो उधर आप विजिबिलिटी थोड़ा ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि वहाँ पे डिस्टेंस व्हीकल को रोकने के लिए थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, क्योंकि व्हीकल की वेट की जो कंपोनेंट है वो अलॉन्ग द डायरेक्शन एक्ट कर रही है। तो दीज आर द 4 कंपोनेंट्स अफेक्टिंग द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। अगर इसमें आप हमने सिंपली समराइज किया जाएगा तो पहला पार्ट अपना है स्पीड ऑफ द व्हीकल, दिस इंक्रीजेस बोथ लैग डिस्टेंस एंड ब्रेक डिस्टेंस, सो stopping side distance will be increased. Next है efficiency of the brakes, lag distance is independent of this, braking side distance is inversely proportional, so if efficiency of the brake is more, then stopping side distance is less. And next है frictional resistance. Frictional resistance depends upon the type of the surface, lag distance is independent of friction resistance. And next braking distance जो है वो inversely proportional to the coefficient of friction of the road. So total stopping side distance is decreases with increase in frictional resistance. And next gradient, इसमें दो टाइप के ग्रेडियंट है, एक अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है। अपवर्ड मतलब ascending gradient. In ascending gradient the braking side distance decreases, and in descending gradient braking side distance increases, braking distance increases, and our total stopping side distance will decrease for ascending gradient and stopping side distance will increase for descending gradient. नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट आता है अपना ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस ओपन टू द विजन ऑफ द ड्राइवर ऑफ द व्हीकल intending to overtake the slow vehicle ahead safely against the traffic in the opposite direction. आप जनरली ट्रैवल करते हैं, नोटिस करते हैं कि आपके आगे कुछ लॉरी या बस कुछ होंगे, आप उसको ओवरटेक करना चाहते हैं, तो आप पहले दूसरे लेन में जाते थोड़ा चेक करते हैं परसेप्शन में, क्योंकि उसमें कुछ गाड़ी आ रही है नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही तो अच्छी है, अगर आ रही तो आप डिस्टेंस चेक करते हैं, उस गाड़ी भी स्पीड में आएगी, आप उसको टकराने के पहले इसको ओवरटेक कर सकते हैं नहीं। जनरली सिंगल लेन रोड्स जो होता है, सिंगल लेन और इंटरमीडिएट लेन्स में कुछ जगह पे एनलार्जमेंट किया जाता है कुछ दूर तक, ताकि वहाँ पे व्हीकल्स ओवरटेक कर सके। तो इसके बारे में हम अब डिस्कस करते हैं।
ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस किस किस चीज़ों पे डिपेंड करते हैं? पहले वेलोसिटी ऑफ द ओवरटेकिंग व्हीकल एंड वेलोसिटी ऑफ द ओवरटेकन व्हीकल एंड द व्हीकल इनकमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट होता है स्पेसिंग बिटवीन द व्हीकल्स। नेक्स्ट रेट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द ओवरटेकिंग व्हीकल, मतलब आप एक्सेलरेटर प्रेस करते हैं कितना तेज़ी से वो एक्सेलरेट होगा व्हीकल, मतलब ये आपकी गाड़ी के टाइप पे डिपेंड करेगा और ड्राइवर के स्किल पे भी। आप जितना ज़्यादा स्किलफुल है और आपकी गाड़ी कितनी अच्छी है उसको पिकअप करने में और एक्सेलरेट करने में। नेक्स्ट आता है ग्रेडियंट ऑफ द रोड। ग्रेडियंट में इसमें हम पहले के इसमें भी देखा है, इसमें भी देखा है। अगर आपकी अपवर्ड ग्रेडियंट में जा रहे हैं तो आपको एक्सेलरेशन ज़्यादा देनी पड़ेगी, एंड आप डिसेंडिंग ग्रेडियंट में जा रहे तो आपकी कम कम पावर में भी चल जाएगा। नेक्स्ट अब इसको डिटेल में देख लेते हैं। अब देख लीजिए इसमें आपकी व्हीकल ए जो है दैट इज ओवरटेकिंग व्हीकल, एंड बी जो है दैट इज ओवरटेकन व्हीकल, एंड सी जो है दैट इज द व्हीकल कमिंग इन द ऑपोजिट प्लेन। अब मान लो बी कुछ बस है, ए कुछ कार है एंड सी भी कुछ कार है। पहले पहले इंस्टेंट में क्या होता है, जैसा हमने स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में लैग डिस्टेंस जो निकाला था, मतलब वही जितना टाइम आपके ड्राइवर को प्रोसेस करने में लगेगा। उसने आगे बस देखा है एंड साइड की लेन में देखा है कि कुछ व्हीकल आ रही है लेकिन उसका दूर है, वो डिसाइड करेगा हाँ मैं ओवरटेक कर सकता हूँ। उसको उस थॉट आने में, एंड थॉट आने के बाद उसको सेंसेस जाएंगे बॉडी पार्ट्स में एंड वो एक्सेलरेटर प्रेस करेगा। ये जो टाइम है इस रिएक्शन होने में जनरली इस केस में 2 सेकंड लेते हैं। तो ओवरटेकिंग डिस्टेंस में 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले पार्ट है D1, नेक्स्ट D2, नेक्स्ट D3। D1 जो होता है उसको थिंक करने में जो टाइम लगता है 2 सेकंड लेते हैं। इसमें हम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में उसको 2.5 सेकंड लिया है। D1 will be given as time into velocity of the vehicle A। ओवरटेकिंग करने से पहले बी और ए जनरली सेम स्पीड में ट्रैवल करता है। uh, है? तो आपकी D1 वैल्यू जो होती है 2 सेकेंड्स इंटू ट्रैवल स्पीड ऑफ व्हीकल बी ले सकते हैं, या इनिशियल स्पीड ऑफ व्हीकल बी। एंड नेक्स्ट D2 जो है दैट इज द ओवरटेकन डिस्टेंस। तो आप इसमें देख लीजिए आप ओवरटेकिंग कम करते हैं, थोड़ा गैप छोड़ के ओवरटेक करते हैं, उस गैप को एस लेते हैं। एंड आप जब ओवरटेक करने के बाद सेम लेन में आते हैं थोड़ा एस गैप छोड़ के उसके व्हीकल आगे आते हैं। आप बिना गैप छोड़ के आ गया तो एक्सीडेंट हो जाएगा। सो द गैप बिफोर ओवरटेकिंग एंड आफ्टर ओवरटेकिंग विल बी टेकन एज एस। एंड आपके मिडिल वैल्यू जो बी है ना दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ओवरटेकन व्हीकल। आपके सामने जो ट्रक या बस है वो जितना डिस्टेंस कवर कर रही है आप ओवरटेक करने के टाइम के अंदर, दैट विल बी गिवन एज बी। एंड जो D3 वाला पार्ट है दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल सी, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में जो गाड़ी आ रही है वो उस टाइम में जितना डिस्टेंस कवर कर रही है इस ओवरटेकन टाइम में। तो आपकी D1 की वैल्यू जो होती है वो 2 सेकेंड्स इंटू वेलोसिटी ऑफ व्हीकल बी। आपको गेट में वेलोसिटीज दिया जाएंगे बस कितने स्पीड पे ट्रैवल कर रही है, एंड नेक्स्ट व्हीकल कमिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन जनरली आपको डिज़ाइन स्पीड में आते हैं उस रोड की जो स्पीड है, क्योंकि उसका लेन पूरा खाली है तो वो ऑब्वियसली फ्री स्पीड में आएगा। एंड जनरली जो बस ओवर टेकन व्हीकल की स्पीड जो होती है वो डिज़ाइन स्पीड -16 किलोमीटर पर आवर लेते हैं। अगर उसने डेटा नहीं दिया तो आप ये ध्यान रखना। तो आपकी D2 पार्ट जो होता है उसमें आपको टाइम निकलना है, कितना टाइम लगा है आपको ओवरटेक करने के लिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, आपकी T इज इक्वल टू उसका फॉर्मूला होता है 2 × S1 + S2।
बाई जी पावर 1/2 में एस की वैल्यू जो होता है वो इसने कुछ मेंशन नहीं किया तो जनरली लेते हैं हम 6.1 मीटर्स प्लस वेलोसिटी ऑफ द ओवरटेकन व्हीकल इनटू 0.7 सेकेंड्स, अगर उसने कुछ मेंशन नहीं किया तो। एंड नेक्स्ट D3 जो होता है वो आपकी ओवरटेकिंग टाइम जो है वो इनटू डिज़ाइन स्पीड। आप इन तीनों को ऐड करके ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस निकालेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं ओवरटेकिंग जोन। हमने बोला था पहले, मतलब जो आपकी जो इंटरमीडिएट लेन है उसमें कुछ कुछ जगह पे एक्सटेंशन प्रोवाइड किए जाते हैं वहाँ, ताकि वहाँ पे ओवरटेक हो सके। तो वो जनरली उसका लेंथ जो प्रोवाइड करते हैं 3 to 5 टाइम्स प्रोवाइड करते हैं। 3 आपको मिनिमम होता है एंड 5 आपका ऑप्टिमम होता है। 5 प्रोवाइड किया तो एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है एंड आपकी खर्चा भी इकोनॉमिकल भी होंगे। 3 तो मिनिमम प्रोवाइड करना है कुछ अवेयरनेस के लिए। एंड नेक्स्ट आपकी साइन दिया जाता है रोड के पहले। पहला साइन आता है जोन एंटर करने से एक OSD के पहले, एंड फिनिशिंग साइन आपको दिखता है जोन एंड होने के एक OSD के पहले। तो दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ द ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस जोन। आपको दोनों लेन्स में प्रोवाइड किया जाएंगे OSD जोन्स। एंड नेक्स्ट पार्ट आता है अपना सुपर एलिवेशन। इसका मतलब होता है राइजिंग ऑफ द आउटर एज ऑफ द पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू द इनर एज थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द कर्व टू काउंटरएक्ट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आपकी व्हीकल जब सर्कुलर कर्व में एंटर करती है एक स्पीड के थ्रू, आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि आप कभी बस या गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं एंड आप एक कर्व में एंटर किया, सो आपको एक फोर्स साइड में खींचेगी, उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो गाड़ी जब उस केस में एक्सपीरियंस होती है, अगर आपकी गाड़ी की स्पीड ज़्यादा है तो गाड़ी थोड़ा ड्रिफ्ट होने की प्रोबेबिलिटी है उस फोर्स की वजह से। तो हम इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, हल्का सा एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं ऐसा, ताकि एक उसकी वेट, गाड़ी का वेट का भी कंपोनेंट जो है वो भी फ्रिक्शन के साथ साथ हेल्प करे गाड़ी को लेन में प्रिवेंट करने, स्किड स्किड प्रिवेंट करने के लिए। एंड दिस विल बी सुपर एलिवेशन फार्मूला जो है वो दैट विल बी गिवन एज E plus F इक्वल टू V स्क्वायर बाई GR। E जो है दैट इज द वैल्यू ऑफ द सुपर एलिवेशन। आपको जनरली परसेंटेज में दिया जाएंगे या 1/10 1/20 दिया जाएगा। आपकी सुपर एलिवेशन की वैल्यू जो है वो यूनिटलेस होता है, आप ये ध्यान रखना। एंड F जो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इस सुपर एलिवेशन केस में देख लेना, आपकी जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो ट्रांसवर्स फ्रिक्शन है, लॉन्जिट्यूडनल नहीं है। आप स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में जो लेते हो दैट इज लॉन्जिट्यूडनल फ्रिक्शन, क्योंकि आपकी गाड़ी जो जा रही है वो along द डायरेक्शन है, तो फ्रिक्शन भी along ऑपोजिट टू द along द डायरेक्शन एक्ट करेगी, सो दैट विल बी लॉन्जिट्यूडनल फ्रिक्शन। यहाँ पे जो है लैटरल फोर्सेस को बैलेंस कर रहा है, तो इसमें जो फ्रिक्शन आता है दैट विल बी योर लैटरल फ्रिक्शन। एंड वी जो है डिज़ाइन स्पीड ऑफ द रोड। जनरली इसमें अगर आप किलोमीटर में दी गए स्पीड एंड उसको आप इस फार्मूला में डाल रहे तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके डालिए, एंड R विल बी इन मीटर, G विल बी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके। एंड अगर आप इसको एम्पेरिकल में लिखा जाए तो अब आप उसमें आपको स्पीड स्पीड को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आता है V स्क्वायर बाय 127R। उसमें G की वैल्यू 9.81 ले लेंगे एंड V को भी हम मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, सब मिला के V स्क्वायर बाय 127R आता है। उसमें आप V की वैल्यू जो है वो सीधा किलोमीटर पर आवर पे दिया जाता है, उसको सीधा डाल सकते हैं उसमें, तो आपको फिर कन्वर्शन करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो द एम्पेरिकल फॉर्म विल बी V स्क्वायर बाय 127R इन विच V इज इन किलोमीटर्स पर आवर एंड R इज द रेडियस इन मीटर। ओके। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं सुपर एलिवेशन जो है थीटा
उसको tan थीटा ई की वैल्यू होती है tan थीटा। एंड नेक्स्ट सुपर एलिवेशन लिमिट करते हैं हम टेरेन्स पे, क्योंकि अगर आप सुपर एलिवेशन ज़्यादा दे दिया तो आपकी गाड़ी रेस्ट में आ गई कर्व पे, तो क्या होगी, आपकी व्हीकल की वेट की जो कंपोनेंट है वो वो इनवर्ड खींचेगी। सो उसकी वजह से क्या होगी, आपकी गाड़ी स्लाइड हो जाएगी अंदर, रेस्ट पे नहीं रुकेगी। तो इसको हम काउंटर करने के लिए क्या करते हैं, सुपर एलिवेशन को लिमिट करते हैं, ताकि अगर आपकी गाड़ी रेस्ट में है तो द फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू बैलेंस द इनवर्ड वेट। ओके, तो इसकी वैल्यूज आप ध्यान रखना। प्लेन और रोलिंग टेरेन में 7% मैक्सिमम है, हिली टेरेन में 10% मैक्सिमम है। स्नोई बाउंड हिली टेरेन, इसमें फ्रिक्शन नॉर्मल टेरेन से कम होता है, क्योंकि स्नो है तो वाटरी वाटरी हो गया तो क्या आपकी सरफेस स्मूथ हो जाएगी, तो फ्रिक्शन कम हो जाएगी। सो इसमें हिली टेरेन से कम रखते हैं, वो लिमिटिंग है 7%। ओके, आप एक बार इसको देख लीजिए थोड़ा। एंड नेक्स्ट अपना होता है इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। इसका मतलब होता है कि अपना सुपर एलिवेशन का जो फॉर्मूला में फ्रिक्शन टर्म को जीरो करना है बस। इसका मतलब होता है कि फ्रिक्शन ऑन द सरफेस इज जीरो एंड सच दैट प्रेशर ऑन इनर एंड आउटर सरफेस इज सेम। ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएंगे, गेट में भी और ईएससी में भी। गेट में तो आपको ये स्टेटमेंट पूछा, पिछले बार भी पूछा गया था, बाद में भी पूछ सकते हो। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना, फ्रिक्शन ऑन द सरफेस इज जीरो एंड प्रेशर ऑन द इनर एंड आउटर व्हील इज सेम। गेट में आपको सीधा पूछा जाएंगे, ईएससी में आपको ये चार ऑप्शन देके पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, 1 और 2, 1 और 3, ऐसा कुछ। आप ये ध्यान रख लीजिए थोड़ा। फ्रिक्शन ऑन सरफेस इज जीरो एंड प्रेशर ऑन द इनर एंड आउटर व्हील इज सेम। तो इसमें खाली ई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v²/gr, एंड दैट इज इक्वल टू v²/127r, एम्पेरिकल फॉर्मूला in which v is in kilometer per hour and r is in meters. And next, design super elevation। तो हम कोई भी रोड के लिए हमको डिज़ाइन करना है। अगर आपने कुछ आप काम कर रहे हैं, एक कर्व है उसमें आपको एलिवेशन डिज़ाइन करना है, तो कैसा करते हैं अब देखते हैं। पहले ई की वैल्यू आप पूरा E+F इक्वल टू नहीं लेते हैं, पहले आप लेंगे, पहले आप कैलकुलेट करते हैं डिज़ाइन सुपर एलिवेशन। इट इज़ दी सुपर एलिवेशन करस्पॉन्डिंग टू 3/4 ऑफ द डिज़ाइन स्पीड। तो इसमें हम क्या करते हैं, ई इज इक्वल टू 0.75v होल स्क्वायर बाई जी आर करते हैं। अगर इसको हमने v²/127r जो फार्मूला है उसमें v की जगह हम 0.75v सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वो हो जाएगी v²/225r। इससे अपना डिज़ाइन सुपर एलिवेशन निकलेगा। एंड इस डिज़ाइन सुपर एलिवेशन को हमने पहले जो टेबल देखा है ना, टाइप ऑफ सरफेस के लिए लिमिटिंग वैल्यू से, उससे हम कंपेयर करेंगे। मान लो आपकी सरफेस जो है, मैक्सिमम सरफेस होता है प्लेन और रोलिंग टेरेन्स। अगर आपकी डिज़ाइन सुपर एलिवेशन जो वैल्यू है दैट हैज़ कम एज 6%, तो दैट इज लेस देन 7%, इट इज एक्सेप्टेबल। इफ द obtained डिज़ाइन सुपर एलिवेशन वैल्यू इज ग्रेटर देन 7%, मतलब आपकी 8% आई है, तो हम क्या करते हैं, उसको 7% ही लेंगे। ओके, आपने एलिवेशन की ज़रूरत निकाल दी, कितने एलिवेशन प्रोवाइड करना है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटर करने के लिए। अब इस ई वैल्यू को हम अब फ्रिक्शन चेक करना, सो हम क्या करते हैं, अब इसको E+F इक्वल टू v²/127r जो फॉर्मूला है उसमें हमने डिज़ाइन सुपर एलिवेशन जो कैलकुलेट किया है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं। आप ये ध्यान रख लीजिए, लैटरल फ्रिक्शन जो होता है रोड का, उसका लिमिटिंग वैल्यू होता है 0.15, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी आपको। तो आपको जितना भी प्रोवाइड करना है सुपर एलिवेशन, ऐसा प्रोवाइड करना है कि आप उस फ्रिक्शन की ज़रूरत जितनी हो वो 1.5 से कम होना पड़े, तो हम फ्रिक्शन की वैल्यू निकालेंगे E+F इक्वल टू v²/127r से। अगर अपना फ्रिक्शन का वैल्यू जो है वो 0.15 से कम आ गया, तो दैट इज एक्सेप्टेबल एंड दैट विल बी फाइनलाइज्ड एज योर सुपर एलिवेशन फॉर दैट कर्व।
एंड आपके फ्रिक्शन की वैल्यू जो रिक्वायर्ड है वो 1.15 से ज़्यादा आ गया, मतलब 0.2 या 0.3 आ गया। उतना तो हो ही नहीं सकता सरफेस में। तो हम क्या करते हैं, उधर स्पीड डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि आप एलिवेशन तो बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि उस सरफेस में लिमिटिंग है 7% प्लेन में। एंड फ्रिक्शन आपकी वैल्यू जो आया है वो 0.15 से ज़्यादा चाहिए आपकी गाड़ी को रुकने के लिए, आपकी गाड़ी को स्टेबल करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, उस टाइप ऑफ कार पे एक बोर्ड लगा लेते हैं, रिस्ट्रिक्टेड स्पीड टू दिस मच। और स्पीड कैसा कैलकुलेट करते हैं, स्पीड करस्पॉन्डिंग टू द डिज़ाइन सुपर एलिवेशन प्लस फ्रिक्शन लिमिटिंग वैल्यू जो है 0.15। और दोनों ऐड करने से कितना स्पीड जो निकलेगा उतना ही मैक्सिमम स्पीड उस कार पे आपके व्हीकल ट्रैवल कर सकती है। तो वी विल लिमिट द स्पीड इन दैट केस। ओके ओके, then please remember and join our Telegram channel for your more upcoming lecture updates on the YouTube channel, and for your course material for the corresponding examination. And once again, here are the Unacademy packages. In Plus subscription, you can get live classes, weekly tests, and courses are in well-structured manner, and crash courses for your revision before the exam, and rank improvement batches to solve your uh, to improve your problem solving ability. And you can get all these you can get this in unlimited access. And in the bigger picture iconic subscription, you will get a personal coach with one-on-one interaction, who can customize your study plan as per your timetable available. And there will be study booster sessions and personalized test analysis for the weekly test, and preparatory study material available for your corresponding exam, and dedicated doubt clearing sessions for yourself. And these are the packages for the Plus and Iconic subscription. If you are subscribed for 1 month, here are the prices. And you have subscribed 1 year, here are the prices. And if you are subscribed for 2 years, these were the prices. And uh, if you use the code ARVD10, you will get the 10% discount on your subscription. And thank you for listening to our channel. Please like, share, and subscribe Unacademy.